समावेश सभाध्यक्षुలు మా बड़े भाई हमारा बासित भाई అలాగే टीएसयू రాష్ట్ర అధ్యక్షులు సోదరులు అబ్దుల్లా గారు ఈనాటి కార్యక్రమానికి ముఖ్య బిందువు కేంద్ర బిందువు टीएसयू హైదరాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షులు నిసార్ అహ్మద్ ఖాన్ గారు అలాగే ఇక్బాల్ గారు అహ్మద్ ఖాన్ గారు ఉమెన్ సింగ్ టీఎస్యూ మేడం గారు వేదికపై ఉన్నటువంటి ఇతర పెద్దలు టీఎస్యూ హైదరాబాద్ జిల్లా వివిధ మండలాల అధ్యక్ష కార్యదర్శులు కార్యవర్గ సభ్యులు నిసార్ సార్ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఇతర సంఘాల బాధ్యులు సోదరి సోదరులారా అందరికీ శుభ సాయంత్రం. గత నెలలోనే ఒక గొప్ప కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ జరుపుకోవడం జరిగింది. రామతుల్లా సాబ్ కా రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్. ఇదే నెలలో మరోమారు టీఎస్యూకు సంబంధించినటువంటి ఒక కీలకమైనటువంటి నాయకులు నిసార్ అహ్మద్ ఖాన్ గారు రిటైర్మెంట్ కావడం కూడా బాధాకరం, సంతోషకరం. ఎందుకు బాధాకరం, ఎందుకు సంతోషకరం అంటే దశాబ్దాల కాలం పాటు ఉపాధ్యాయునిగా ఇంతకుముందు ఏకే ఖాన్ గారు చెప్పినట్టుగా అనేక మంది పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తును ఒక అందమైన శిల్పంలా చెక్కినటువంటి శిల్పిలా పనిచేసి మరి ఉద్యోగ విరమణ చేస్తున్నటువంటి శుభ సందర్భం. బాధాకరం ఎందుకంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల యొక్క అనాలోచిత చేతగాని చర్యల వల్ల 61 సంవత్సరాల ఉద్యోగ విరమణ వయసును ఇస్తా అని చెప్పినటువంటి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీకి అనుగుణంగా ఉత్తర్వులు ఇవ్వకపోవడం వల్ల ఇవాళ నిసార్ అహ్మద్ ఖాన్ సాబ్ గారు రిటైర్మెంట్ కావడం అనేది బాధాకరంగా భావించడం జరుగుతుంది. మరి మిత్రులారా, ఇదొక ఖుషీ సమయం. खुशी का बात है, ये हंसी का बात भी है. बीच में क्या बात चल रहा है बोले तो ये फंसी का बात भी चल रहा है. बागा చెప్తారు కూడా పెడుతున్నాయి అందరి పూల యొక్క గుబాలింపు, షాహరీల యొక్క గుబాలింపు మరింత ఎక్కువగా జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమంలో ఇంత చక్కగా నిజంగా చాలా మంది మహిళా సోదరీమణులు మరి 4 గంటల పాటు ఇంత చక్కగా కూర్చుండి, అలాగే మా భాయి సార్లందరూ సోదరులందరూ కూడా ఇంత చక్కగా ఈ సుదీర్ఘమైనటువంటి సభా సమయంలో కూడా ఏ విధమైనటువంటి అలుపు సొలుపు లేకుండా విసుగు లేకుండా కూర్చున్నారంటే వాళ్ళ నిసార్ అహ్మద్ ఖాన్ సాబ్ యొక్క హృదయం ఎంత మంచిది అనేది రిఫ్లెక్షన్ ఇక్కడ అవుతుంది. వారి మీద మీకున్నటువంటి ప్రేమాభిమానాలు, వారి సంఘంలో సమాజంలో నలుగురితో కలిసి ఉన్నటువంటి విధానం, ఉపాధ్యాయ విద్యారంగ సమస్యల విషయంలో తాను పోరాడుతున్నటువంటి సందర్భం అంతా కూడా చాలా సంతోషకరం. మరి ఇంతకుముందే జిల్లా అధ్యక్షులు, ప్రధాన కార్యదర్శి గారు, రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, అలాగే చాలా మంది సోదరులు, ఇక్కడ చాలా మంది, ఒక అమ్మాయి కూడా అద్భుతంగా మాట్లాడడం జరిగింది. అద్భుతమైనటువంటి షాయరీ, నిజంగా ఉర్దూ మీడియంలో కూడా నిసార్ అహ్మద్ సార్ ఉర్దూ స్కూల్ వస్తే అలాగే ఎంతో మంది ఉర్దూ టీచర్లు కూడా పిల్లలకు చాలా నాణ్యమైనటువంటి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నందుకు గాను మీ అందరికీ శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ, మరి ఐఆర్ విషయంలో కావచ్చు, పిఆర్సీ విషయంలో కావచ్చు, రిటైర్మెంట్ వయసు విషయంలో కావచ్చు, ప్రమోషన్స్ విషయంలో కావచ్చు, సిపిఎస్ రద్దు విషయంలో కావచ్చు, పండిత్ పీఈటీల యొక్క అప్గ్రేడేషన్ విషయంలో కావచ్చు, అనేక సమస్యలు మనతో ఉన్నాయి. మన అనేకమైనటువంటి పోరాటాలు జరుగుతున్న సందర్భం, ప్రభుత్వంలో కూడా సెలవులు లేనటువంటి ఒక ఆందోళనకరమైనటువంటి పరిస్థితిలో మనం ఉన్న సందర్భం. టీఎస్యూ ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ సాధనకు ఏ విధంగానైతే మనం ముందుండి పోరాటం చేశామో అదేవిధంగా భవిష్యత్ తరాలకు భవిష్యత్తులో ఈ సమస్యల సాధనకు మనందరం భుజం కలిపి అన్ని సమస్యలను సాధించుకొని ఉపాధ్యాయ విద్యా రంగాన్ని 3 పూలు 6 కాయలన్న చందంగా తీర్చిదిద్దుకోవాలని భావిస్తూ, మరి ఈ అవకాశం చాలా కాలాతీతమైంది. మరి సమయం మించిపోయినప్పుడు ఎక్కువ ప్రసంగించడం కూడా భక్తి యొక్క లక్షణం కాదు కనుక నేను మధ్యలోనే ఈ సమయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని, మీ అందరి యొక్క విసుగును దృష్టిలో పెట్టుకొని, మా సోదరుని యొక్క ఉద్యోగ విరమణ కూడా చాలా ఉల్లాసంగా మంచిగా జరగాలనేటువంటి తలంతో ఇంతటితో విరమిస్తూ మీ అందరికీ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరో కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ముగిస్తున్నాను. జై ఎస్టీ. निसार अहमद खान साहब को इस शेर के साथ दावत खिताब देना चाहूँगा कि शेर के साथ निसार साहब को दावत खिताब देना चाहूँगा. इसके बाद दाइस पे तशरीफ फरमा टीएसयू स्टेट डिस्ट्रिक्ट और मंडल के कायदे, अदर यूनियन के कायदे और
मेरे साथी असातिज़ा, अल्लाह का रहम और करम है और मेरे रसूल पाक के सदक़े तुफ़ैल में और मेरी माँ बाप की दुआओं की बदौलत और मेरे अफराद ख़ानदान की शिराकत दारी की वजह से मैं आज अपने मुलाज़मत के 28 साल बखूबी बहुस्न खूबी अंजाम देते हुए आज इस मुलाज़मत से रिटायर होने जा रहा हूँ। और दूसरी खुशी मुझे इस बात की है आज कि मैं जिस जलसे से विदा हो रहा हूँ उस जलसे की सदारत मेरे बड़े भाई जनाब बासित खान साहब अंजाम दे रहे हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है। इसके अलावा मैं और आगे बढ़ता चलूं कि इस महफिल में एक ऐसी बुजुर्ग शख्सियत मौजूद है जिसके बिना मेरा वजूद ही नहीं और जिनके बिना मेरी जिंदगी नहीं और जिनके बिना मैं यहां तक पहुंचा हूं, वो मेरी मां है जो इस महफिल में मौजूद है। अल्लाह के फज़ल व करम से मेरी मां 90 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन वो अपनी जरूरियात की तकमील वो खुद करती है और उसकी दुआओं की बदौलत हम तमाम भाई बहन और अफराद खानदान खैर और खैरियत से हैं, उनके छत्र छाए हुए हैं, उनकी दुआओं की बदौलत हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैं अपनी माँ की खिदमत में और अपनी माँ की तहनीयत में मुनव्वर राना के एक दो अशार कहता चलो, समाज फरमाए। बुलंदियों का बड़ा से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़ा से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माने तो आसमान छुआ। बुलंदियों का बड़ा से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माने तो आसमान छुआ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। ये मेरी माँ की तहनीयत में मैंने इन अशार को पेश करने की जसारत की है। मेरी माँ आज भी तहज्जुद गुजार है और हमेशा अपने दुआओं के साथ अपने खानदान की दुआओं के नवाजते रहती है। जभी भी मैं एक बात बताता चलूं, जभी भी मैं स्कूल से एक्सकर्शन के लिए जाता तो पूरे बच्चे और मैं टीचर वापस आए तक मेरी दुआओं की, मेरी सलामती की, मेरे साथ रहने वाले बच्चों के लिए दुआएं करते रहती थी। ये दुआ हमें नसीब है और उसी की बदौलत आज हम 5 भाई बहन एक साथ इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ हम जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मेरे पेशरो मुखर्रमीन, मेरे पेशरो साथियों ने कहा, मैं ज्यादा तफसीलात में न जाते हुए थोड़ा सा अपने बारे में मुझे बताना तो नहीं चाहिए क्योंकि आप लोग खुद वाकिफ हैं कि मेरी तालीमी खिदमत 1991 से मेरी तालीमी खिदमत शुरू हुई। दूधमनी यूपीएस स्कूल में पहला अपार्टमेंट रहा। वहां से 1999 में गवर्नमेंट यूपीएस स्कूल डबिलपुरा, गर्ल्स यूपीएस स्कूल डबिलपुरा पर आया और वहां से कबीले खदीम जीपीएस कबीले खदीम के पर ट्रांसफर अमल में आया और वहां पर सिर्फ 2 या 3 महीने वहां पर रहने के बाद 2009 में
एज ए स्कूल असिस्टेंट वट्टेपल्ली हाई स्कूल पर गया और 2009 से 2019 तक वट्टेपल्ली स्कूल पर खिदमत अंजाम देता रहा और वहीं से आज मैं रिटायर होने जा रहा हूं। जब वट्टेपल्ली हाई स्कूल पर मैं गया तो वहां पर 200 से 250 बच्चों के दरमियान हाई स्कूल पर स्ट्रेंथ थी और 4 असातिज़ा के पोस्ट भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन आज अल्लाह का फजल व करम है और आप लोगों की साथ और आप लोगों की हिम्मत की वजह से मैंने ऑफिसरों के गिरेबान को पकड़कर वहां पर एक गजेटेड HM का पोस्ट और 25 स्कूल असिस्टेंट के पोस्ट वहां पर लाया हूं और पोस्टों के साथ साथ पर्सन्स भी आज वहां पर पूरे काम कर रहे हैं। स्कूल तो बहुत दूर है लेकिन वहां पर मैंने अपने जुस्तजू के साथ असातिज़ा की काउंसिल कर वहां पर ले गया और वो वहां पर खुशी से वो आज खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 25 स्कूल असिस्टेंट, 8 गजेटेड HM और 600 तलबा के साथ वहां का स्कूल चल रहा है। तो देखिए 2009 से इससे बनकर मैं जब वट्टेपल्ली पर गया और 2019 तक मेरे सब्जेक्ट का रिजल्ट जैसा कि नबी साहब ने अपने इल्फाज में लिखा कि उर्दू में इन 10 सालों में 10 साल भी मेरा रिजल्ट 100% रहा। मैंने कभी भी अपने तालीमी सरगर्मियों में अपनी जिम्मेदारी के तालीम की जिम्मेदारी में अपने यूनियन के सरगर्मियों को शामिल नहीं किया। मैं वहां पर जब 2009 में गया, अक्टूबर 2009 में गया तो वहां पर देखा कि वहां के हेडमास्टर साहब टाइम टेबल देने के लिए ही तैयार नहीं है। मुझे 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, टाइम टेबल मेरे हाथ ही में नहीं लगा। तो आकर मैं ये पूछा कि भाई क्या वजह है मुझे टाइम टेबल नहीं दिया जा रहा है। तो हेडमास्टर साहब ने कहा नहीं सर साहब आपको यूनियन के काम रहते ना, आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है और आपको टाइम टेबल देना जरा मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ। अगर दिया भी तो मैं नीचे UPS के क्लासेस आपको देना चाहूँ। तो मैंने उनसे ये कहा, हो सकता वो साहब यहाँ मौजूद भी होंगे। मैंने उनसे ये कहा कि साहब मैं पहले टीचर हूँ और बाद में लीडर हूँ। अगर मैं टीचर ना बनता तो ये यूनियन का लीडर, टीचर्स यूनियन का लीडर ना बनता। लिहाजा आप मुझे टाइम टेबल दीजिए और वो भी 9th और 10th क्लास दीजिए, ये मैं आपसे कहा और उन्होंने मुझे दिया और वहीं से मैं अपनी खिदमत को अंजाम देता हुआ हर साल रिजल्ट 10% 100% देता हुआ 10/10 मार्क्स के साथ दे रहा हूँ। ये मेरी तालीमी सरगर्मियाँ थी और यूनियन की सरगर्मियों से तो आप लोग पूरे वाकिफ हैं कि जब मैं तेलंगाना स्टेट टीचर्स यूनियन ज्वाइन किया तो वहाँ से आज तक उसी यूनियन से वाबस्ता हूँ और 2010 में एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की हैसियत से मुझे नामजद किया गया और वहाँ से स्कूलों की और असातिज़ा की खिदमत में मैंने कोई कमी नहीं की और ऐसे स्कूल जिसके आर्डर्स निकल चुके थे बंद करने के लिए या मर्ज करने के लिए, उन स्कूलों को मैंने डटकर मुकाबला करते हुए, मैं अकेला नहीं, मेरी यूनियन का, तेलंगाना स्टेट टीचर्स यूनियन का मुझे स्टेट ऑफिस बेनर्स का साथ था, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बेनर्स का साथ था, मंडल ऑफिस बेनर्स का साथ था और आप लोगों की हिम्मत थी, आप लोगों की ताकत थी। मैंने ऑफिसरों के गिरेबान को पकड़कर, DO जगन्नाथ रेड्डी के गिरेबान को पकड़कर कहा कि ये स्कूल यहाँ से नहीं जाएगा और ये स्कूल किसी स्कूल में दम नहीं होगा जब तक रिलोकेटेड स्कूल नई बिल्डिंग नहीं मिलेगी, ये स्कूल वही काम करेगा। तो उस व्यवस्था पर वो ऑर्डर को रोक दिया गया और कलेक्टर उसमें इन्वॉल्व हुआ और कलेक्टर टीचरों को सस्पेंड भी किया और उसके बावजूद भी उन टीचरों को फिर मैं रजिस्टर्ड कराया और रजिस्टर्ड कराने में मेरे स्टेट ऑफिस बेरर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बेरर
ने मेरा साथ दिया। ये आप लोगों की हिम्मत थी कि महर ऑफिसर का गिरबान पकड़ता था, लीडर को देखा जाता, ऑफिसर ये देखता है कि इसके पीछे कौन है, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे कौन सी ताकत है। तो मेरे पीछे बासित खां है और मेरे पीछे DSPO है वो, और मेरे पीछे आप हजरात हैं। इसी वजह से मैं हर मराहे में कामयाब होता गया। मैं आप लोगों का शुक्र अदा करता हूँ, तमाम असातिज़ा साहिबीन का, कि मेरे एक आवाज पर आप लब्बैक कहते थे और मेरा साथ देते थे। और मैं यहाँ पर मैं अपने शरीक हयात का भी शुक्रगुजार हूँ कि जैसा कि इकबाल साहब ने कहा कि 2-3 बजे तक यूनियन की सरगर्मियों से वाबस्ता रहने के बावजूद भी घर पर जाते और फिर सुबह निकल कर जाते। कभी मेरी शरीक हयात हो या मेरे बच्चे हो, कभी अपने परेशानी पर बल नहीं लाए। मैंने तमाम जिम्मेदारियां इन सब को इत्तेहाद वो इत्तेफाक में लेकर गया हूं और एक कामयाबी के साथ आज यहाँ पर रिटायर हो रहा हूं। मैंने अपनी सर्विस में तो बहुत डीओ को देखे, लेकिन 2010 से कई डीओ को देखा जिसमें काबिल जिक्र जगन्नाथ रेड्डी, सोमेरेड्डी, सुब्बारेड्डी, रमेश और वेंकटा नरसम्मा है। हाल ही में वेंकटा नरसम्मा भी हैदराबाद में स्पॉट वायलेशन के लिए हमको नोटिसें जारी की, शोकास नोटिसें जारी की और शोकास नोटिसों के बाद ये कहा जा रहा था कि टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो मेरे एक दोस्त हाजा साहब जो स्कूल असिस्टेंट हैं बायोलॉजी के और एक एसोसिएट प्रेसिडेंट भी हैं हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के DSPO के, आपने मिलकर कहा निसार साहब हम जाएंगे इस बारे में बात करेंगे। तो फिर जाकर हमने DO से बात की और ये कहा कि मैडम यहाँ तक बस, जो आप करें यहाँ तक बस, अगर इसके आगे जाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी आप ही पे आयद होगी कि हैदराबाद के टीचर्स और हैदराबाद के तमाम यूनियंस मिलकर जो आपका हशर करेंगे आप जिंदगी भर नहीं भूल सकेंगे। बस यहाँ तक बस, अगर शोकास के बाद आगे ले जाने की आप कोशिश मत कीजिए। ये उनसे हम पैगोल लेके होते थे कि ठीक है निसार साहब, मैं सोचते हूँ, सोचना नहीं, यहाँ पर रोक देना चाहिए। तो उसने शोकास नोटिस के बाद रोक दिया और अब एक तमाशा है, स्कूलों को फिर रहे हैं सुबह 8 बजे, 8:15 बजे, 8:30 बजे, और कोई टीचर एब्सेंट है असेंबली में तो हेडमास्टर कह रहा है कि फोन पर मैसेज आया है, तो हेडमास्टर का फोन लेकर चेक कर रहे हैं वो टीचर के नंबर से, वो हेडमास्टर पर जो नंबर है वो नंबर चेक कर रहे हैं कि हेडमास्टर सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो मैं अभी उस बारे में भी वेंकटा नरसम्मा मैडम से बात किया, तो वो ऑफिस आने के लिए कहें, जाकर उनसे बात करूंगा। और मैं यहाँ पर मेरे दोस्त डिप्टी आईओ जनाब नेहरू बाबू का नाम लिए बगैर नहीं रहूंगा। क्यों? कि इसलिए कि 28 सालों में 15 साल मेरे और उनके एक साथ गुजरे हैं, ऐसे ऑफिसर, ऐसे टीचर, ऐसे यूनियन लीडर। तो नेहरू बाबू साहब की ये खूबी ये है कि वो तमाम लोगों से मिलजुल कर अपना काम निकाल देते हैं। किसी से, कोई भी यूनियन से वो इख्तिलाफ लेना नहीं चाहता, सब यूनियनों को अटेंड करते हैं और फिर जो समझ में आया वही काम करते हैं। ये उनकी खूबी है और आज तक भी वो एज ए डिप्टी आईओ चारमीनार बरकरार है और डिप्टी DO भी बहादुरपुरा मंडल बने। मैं जब चारमीनार से बहादुरपुरा आया तो वहीं पर मेरा पीछा करते हुए बहादुरपुरा डिप्टी DO बनकर आए और वहां से जो मैं समझ तो ये रहा था कि 2019 में भी उन्हीं के डिप्टी DO की सदारत में मैं रिटायर होगा, लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए कि वो फिर से डिप्टी आईओ बनकर चारमीनार चले गए। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद मैं अपने यूनियन के कायदीन का, स्टेट के कायदीन का और मेरे डिस्ट्रिक्ट के लीडर के कायदीन का और मंडल लीडर्स के कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इन असातिज़ा के मसाइल को हल करने में
जब मैंने पुकारा वो लब्बैक कहे और मेरे साथ रहे। और मैं अब अभी भी इन कायदीन को ये मशवरा देता हूँ कि जिस तरह से पीएसपीओ के कारनामे चलते जा रहे हैं, आप अब बागडोर आप लोगों के हाथ पे है। मैं ये समझता हूँ कि बासित साहब के बाद उसकी बागडोर मैंने संभाली और कौन आते अब नहीं मालूम। जो भी आने वाली लोग हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ और स्टेट के कायदीन से भी ये गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह से मेरे साथ आप लोगों का साथ रहा, उसी तरह है आने वाली नई बॉडी के साथ भी स्टेट के कायदीन, डायनेमिक लीडर राजा रेड्डी साहब और अब्दुल्ला साहब है यहाँ पर बैठे हुए, उनसे ये कहूँगा कि मैं हमेशा आप इन लोगों का साथ दें और यूनियन को आगे लेके जाएं, यूनियन की तरक्की के लिए काम करें। और जब 2012 में बासित साहब का रिटायरमेंट करीब आ रहा था तो लोग कह रहे थे कि पीएसपीओ अब खत्म हो जाती है, तेलंगाना स्टेट टीचर्स यूनियन बासित साहब रिटायर होते खत्म हो जाती है। क्या बासित साहब के घर की यूनियन है खत्म हो जाने के लिए? यूनियन में तमाम कायदीन आते हैं और जाते हैं। लोग ये कह रहे थे नहीं बासित खान की हत्या की पीएसपीओ है, बासित खान जाने के बाद पीएसपीओ खत्म। लेकिन बासित साहब रिटायर होके 7 साल 8 साल का अरसा हो चुका है। बासित खान साहब के जो प्रोग्राम रहते थे, बासित खान साहब का जो अंजाम तरीका का जो काम करने का तरीका था, उनके मुकाम तक तो मैं नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो भी उनकी सदारत में हैदराबाद में जो काम होते थे उन कामों को मैंने पूरा किया है। और आप हजरात के जो भी काम मैंने भी मुकम्मल किया है। तो आज फिर लोग कह रहे हैं कि निसार खान रिटायर हो रहा है, यूनियन खत्म हो जाएगी। बोलते रहिए, बोलने वाले बोलते रहिए, पीएसपीओ आगे जाते ही रहेगी, आगे जाते ही रहेगी, आगे जाते ही रहेगी। लोगों का काम है बोलना, बोलते रहते, लेकिन पीएसपीओ कभी खत्म होने वाली नहीं है। निसार साहब रहें दो या बासित साहब रहें दो या राजा रेड्डी रहें दो या अब्दुल्ला रहें दो, लोग हटते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, पीएसपीओ आगे बढ़ते जाएगी और अपने कदम आगे लेते जाएगी। ये मेरा वादा है और ये मेरा यकीन है और मेरा महत्व प्रयोग है। इसके बाद मैं आप तमाम हकादार बिरादरी का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मेरे साथ साथ यूनियन की सरगर्मियों में हिस्सा लिया। यहीं पर ही नहीं बल्कि मैंने आप लोगों को ऑफिस बुलाया, वहीं पर भी आया, डायरेक्टर बुलाया, कलेक्टर बुलाया, जहां भी मैं अपने आपके मसाइल को हल करने के लिए बुलाया वहां पर आप लोग मौजूद रहे। और खास तौर पर ये तो जाहिर से स्टाफ है, लेकिन मैं उस तरफ आप बताऊं लेडीज स्टाफ की तरफ कि उन लोगों ने भी मेरा खुलकर अपने मसाइल को हल करने पर साथ दिया। और एक जमाना था मल्लमा मैडम के जमाने में, ये लेडीज टीचर स्कूलों की बहा के लिए मेरे साथ खड़े हो गए और वो जो डिप्टी चारमीनार के नायब इफ्तार चारमीनार के मोहतरमा थे, उनसे बहस और तकरार में इन टीचरों ने मेरा साथ दिया और नायब इफ्तार ऐसा भागी चप्पल छोड़कर जाके वहां पे डब्ल्यू में कहीं ठहरे मल्लमा मैडम आए थे। तो ये लेडीज असातिज़ा का कारनामा है, इन लोगों ने मेरा साथ दिया और आप लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है इन स्कूलों को बचाने में। आप टीचर्स का भी, मेरा अकेले का नहीं है, आप टीचर्स का भी है। इंशाअल्लाह ये तो सर्विस स्कूल मुलाजिमत से रिटायर हो रहा हूँ, रिटायर बट नॉट टाइट। डायरेक्टर एक आर्डर दिया है रिटायर बट नॉट टाइट, लेकिन उस पर अमल तो नहीं करूंगा, लेकिन आपसे कह रहा हूँ कि रिटायर बट नॉट टाइट। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में रहकर खिदमत किया हूँ, लेकिन अब ये सोचा हूँ, अभी ये खान साहब भी एक ऑफर दिए, लेकिन उनको बाद में बात करता हूँ कहा, लेकिन मैं एक सोचा हूँ कि मैं एक नॉन गजेटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा, एनजीओ, और हमारे असातिज़ा के साथ जो खिलाफवर्जी हो रही है और हमारे स्कूलों के साथ
जो बेमानी उर्दू मीडियम स्कूलों के साथ हो रही है। अब तक मेरे हाथ बंद थे, अब हाथ खुल चुके हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर, एक एनजीओ बनाकर अब ऐसा काम करूंगा कि कोई भी ऑफिसर इन असातिज़ा की तरफ नजर नहीं डालेगा और कोई भी ऑफिसर में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि उर्दू मीडियम को क्लोज कर ले या मत करने की उसमें कोई ताकत या हिम्मत हो। ये आप लोगों के साथ मैं वादा कर रहा हूँ और वादे के साथ आप लोगों का साथ चाहता हूँ, उस एनजीओ के साथ आपका ताउन चाहता हूँ और उसको आगे ले जाने में आपका ताउन चाहता हूँ। खुदा हाफिज। ఈనాటి సమావేశానికి ఇచ్చిన మీ అందరికీ నాకు నమస్కారాలు। आज निसार भाई का रिटायरमेंट फंक्शन है। ये पहले मैं 2005 में आया तो जब ज्वाइनिंग का टाइम में मैं यूनिवर्सिटी से आया इधर यूनिवर्सिटी में ये बात बोला तो ये भाषा मेरा बात बोला तो ये निसार भाई मेरा को ये सिखाए लैंग्वेज। पहले मेरा इंग्लिश आता, इंग्लिश नहीं और तेलुगु मीडियम से आया मैं। इधर आने के बाद निसार भाई मेरा साथ MRP करे, उन्होंने डेली 2-3 बच्चा का ABC प्रोग्राम चल रहा ना, ऐसा ABC प्रोग्राम में मेरा को ये लैंग्वेज थोड़ा सिखाए। इसके साथ मैं ये जो काम करे मैं बहुत पसंद है, वो अल्लाह उनको अच्छा रखना। थैंक यू एवरीबॉडी। इस जलसे के सदर वासिफ खान साहब को बुलाऊं। मैं रहमत साहब से ख्वाहिश करूंगा कि इसके बाद एक वासिफ खान साहब है, रहमत साहब के आज के इस जलसे को मुखातिब कर रहमत साहब ऐसा तो चाहिए। जनाब एम ए वासिफ खान साहब, जनाब अब्दुल्ला साहब PSQ प्रेसिडेंट तेलंगाना स्टेट, जनाब गाजी रेड्डी साहब जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट टीचर्स यूनियन और डेस्क पे तशरीफ फरमा कायदीन और अदर यूनियन के कायदीन और असातिज़ा साहिबीन, अस्सलाम वालेकुम। आप बहुत देर से आज के निसार साहब के खिदमत को सुन रहे थे। निसार साहब से मेरी पहली मुलाकात 1983 में हुई, जब हम दो एक साथ PTC करते थे। वहाँ से मैं इनके साथ हूँ और आज तक हूँ। अब मैं भी रिटायर हुआ हूँ, उन्होंने भी रिटायर हुए हैं और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह से हम रहते रहेंगे। जैसा कि आप तमाम सब वाकिफ है कि निसार साहब के कारनामे, वासिफ खान साहब के कारनामे, जैसा कि आप समझते हैं कि हर चीज मुसब्बब सबब से मांगो, मिन्नत से, खुशामद से, अदब से मांगो, क्यों गैर के आगे हाथ फैलाते हो, बंदे अगर हो खुदा के तो खुदा से मांगो। यही दुआ जनाब M.A. मजीद साहब और महबूब उन्नीसा साहबा ने की थी, जो उनके घर ऐसे सुकूत पैदा हुए। जैसा कि आप तमाम वाकिफ हैं, जनाब बासित खान साहब, जनाब हफीज खान साहब, जनाब निसार अहमद खान साहब, जनाब एजाज अहमद साहब, ये चारों के चारों PTC कर चुके हैं और जिसमें 3 आपके साहबजादे गवर्नमेंट सर्विस ये हैं और तीनों के तीनों आज की तारीख में रिटायर हो चुके हैं। और इसके साथ ही साथ आपके बहने और मजीद साहब के दुख्तरान को देखा जाए तो उसमें भी 2 दुख्तरान PTC कर चुके हैं, जिसमें एक दुख्तर सूफिया बाजी जो है वो भी एजुकेशन से वाबस्ता थी और वो भी हाल ही में रिटायर हुई। इस तरह से ये तमाम घराना गवर्नमेंट बच्चों की भलाई के लिए काम किया है। और मैं नहीं समझता हूँ कि 83 में जब अपॉइंटमेंट हुए एक ही घर से 3 अफराद को गवर्नमेंट जॉब मिला था। वो घर जनाब M.A. मजीद साहब का, महबूब उन्नीसा साहब का। और जब से मैं देखता आया हूँ कि बासित साहब हो या हाफिज साहब हो या सूफिया बाजी हो, इनसे बहुत करीबी हो कि जिसकी कोई क्या, अरे हमको तो आज बोलना है भाई, आप लोगों को क्या बोल रहे हैं, 83 से अब तक बोलना है मेरे को।
तो मैं ये समझता हूँ कि ये घराना बहुत ही अच्छा घराना है और आपकी मेहनतों का और ये तमाम को जो लेके चले हैं जनाब एम.ए. बासित खान साहब का भरपूर ताउन अपने पूरे भाइयों और बहनों मिलनसार, उनका ससुराल भी बहुत ही अच्छा। आखिरी वक्त में इसकी स्टेज से बुलाया वरना बोलना बहुत चाह रहा था। खुदा हाफिज। आज इस सालाना मिल्लत मेमोरियल ऑडिटोरियम में आली जनाब निसार अहमद खान साहब का रिटायरमेंट फंक्शन के दौरान यहाँ पर डाइस पे तशरीफ फरमा मेरे मुखलिस डायनामिक लीडर आली जनाब बासित खान साहब, जनाब निसार अहमद साहब और दीगर डाइस पे तशरीफ फरमा कायदीन और असातिज़ा साहिब, मैं मुख्तसर सी बात करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत कम शख्सियतें ऐसी होती हैं जो अपने खिदमत और सर्विसेज से जाने जाते हैं, जिनमें मैंने जो देखा तकरीबन 23 साल के अरसे से देखता आ रहा हूँ और उसकी जिंदा मिसाल जनाब निसार अहमद खान साहब। मैं निसार अहमद खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ में एक छोटा सा मेरे उनके साथ एक वाक़या हुआ। वो वाक़या ये था, वाक़या क्या, मेरी नौकरी की शुरुआत में 97 DSC की बात, 97 DSC फर्स्ट लिस्ट के असातिज़ा के तफर्रुआत अमल में आ गए थे और सेकंड लिस्ट के असातिज़ा के मखलूआ जायदादों के जो जायदादें थे उसके सेकंड लिस्ट की सेकंड लिस्ट के लिए उस टाइम लक्ष्मण साहब प्रेसिडेंट थे और बासित खान साहब मंडल के प्रेसिडेंट थे। तो मैंने निसार खान साहब से पहली बार मुलाकात हुई थी वो उस एहतजाजी धरने में। तो हुआ ये था कि बासित खान साहब लोग डायरेक्टर के पास धरना दिए थे और हमारा कलेक्टर ऑफिस में एहतजाजी धरना सेकेंड लिस्ट के लिए 1997 DSC की बात बता। तो सेकेंड लिस्ट के मुताबिक के लिए हम कलेक्टर ऑफिस में जाके एहतजाजी धरना दे रहे थे। वो धरने में निसार अहमद खान साहब को मैंने पहली बार देखा। तो हुआ ये कि अब एक धरना तो बहुत एहतजाज तो बहुत जोरों पर चल रहा था, आवाज़ तो हम एक है, बल्कि जो निसार साहब की गूंज थी, जो उनकी पुकार थी, और वो पुकार को सुन के बनवारीलाल साहब कलेक्टर थे, उन्होंने जाते जाते ये कहा ये पूरों को अरेस्ट करो बोलते। तो आवाज़ तो हम एक है बोले पीछे लक्ष्मण साहब बोला सो भाई बासित भाई डायरेक्टर इसमें धरना दे रहे थे। तो आवाज़ तो हम एक है बोल के आवाज़ आ रही थी मेरी निसार भाई की। तो जैसा ही वहाँ का सर्कल इंस्पेक्टर को इंस्ट्रक्शन मिले, कलेक्टर साहब बोले इन लोगों को अरेस्ट करो बोल। तो मुझे कैसे आके उस कंसल्ट का एरिया ऑफिसर सर्कल इंस्पेक्टर मेरा गला पकड़ के हमारे को अरेस्ट करके ले जा रहा था। तो मैं बोला, मैं परेशान हो गया, अरे आवाज़ तो हम एक है बोले, फिर पीछे पलट के देखा तो सब गए। अरे मैं बोला भाई उसमें तो वाकई में निसार साहब की काबिल सताइश है। मैं परेशान हो गया क्योंकि मेरी दूसरा महीना चल रहा था, मेरी नौकरी था, मेरा अपॉइंटमेंट होने के बाद दूसरा महीना था। अब ये सितंबर में हमारा अपॉइंटमेंट हुआ, दिसंबर में सेकेंड लिस्ट आई। तो उसी दौरान अब सर्कल इंस्पेक्टर साहब, तो मैं परेशान हो गया। अब ये साहब बोले हमारे आप वाकिफ हैं उनको, अरे यहाँ तुम कहीं को जाते यार हो।
नई नई नौकरी है, रेगुलर नहीं होती, या तो के पहुँचना या तुम्हारे को बोल के बोले, मगर आया कोई नहीं था। मैं काबिल मुबारक है निसार भाई कोई वाहिद शख्सियत है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के ये बात बोल रहा हूँ। निसार भाई आके सर्कल इंस्पेक्टर को, जो मेरा कारण पकड़ा हुआ था, मेरे को अरेस्ट करने के लिए ले जा रहा था, ये वाहिद शख्सियत है जो मेरे को सर्कल इंस्पेक्टर से जो है सो उसको बातें कि एक टीचर के हाथ पे आप कैसा गला पकड़ के आप उसका हम एहतजाज में आपको सस्पेंड करवाएंगे, वो जो जिस अंदाज में आप बात करें मैं उसका कभी मैं भूल नहीं पाऊँगा। तो ये यादें हैं, ये यादें रह जाती हैं, यही यादें उनकी सरमाया ज़िंदगी में जाती। तो मैं आखिर में अली जनाब निसार अहमद खान साहब, मतलब बासित खान साहब भी है, बासित खान साहब हमको जो हम बाइसियत है आज बात करने के, हम मैं कोई मुखर्रिर नहीं हूँ, मैं एक फील्ड वर्कर था, लेकिन ये चीज़ें मैं अली जनाब बासित खान साहब से सीखा, हर वो चीज़ सीखा बासित खान साहब। तो बासित खान का चेहरा किधर है, हमारा चेहरा उधर होता था। आज ऐसा हो गया, कोई बात नहीं। तो खैर, तो आखिर में मैं निसार साहब के साथ हमारे ख़ास तौर पे उर्दू मीडियम मदारिस के लिए, उर्दू असातिज़ा के लिए, उर्दू तलबा व तलबात के लिए आपके जो खिदमात हैं, इस ताल्लुक़ से आप कई हमको मशवरे दिया करते थे। हमने एक उर्दू फोरम में भी आपके साथ हिस्सा लिया। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कभी हम भूल नहीं सकते। तो आखिर में मैं आली जनाब निसार अहमद खान साहब का जो आप सुबहदोशी पर बस मेरा एक ही पैगाम है कि अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश व खुर्रम रखे और उनको बासहत रखे। इसके साथ ही मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मजलिस टीचर्स यूनियन की जानिब से आज मैं आली जनाब निसार अहमद खान को खिराज तहसीन पेश करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा। बहुत बहुत शुक्रिया अलीम साहब। अब मैं इसके बाद से आखिर में वासिफ खान साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो आज के इस प्रोग्राम को खातिर करें। वासिफ खान काबिल मुबारकबाद जनाब निसार अहमद खान साहब और अब्दुल अजीज लीडर जो वासिफ खान साहब हैं। मैं ये ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा हूँ, सिर्फ दो बातें और एक हदीस बोलते हुए मैं अपनी बात को जो है ख़त्म करना चाहता हूँ। वो ये है, पान की खिदमत करना कोई मामूली बात नहीं। अभी आप जो है तकरीबन मुखर्रीन से समाप्त कर रहे थे जनाब निसार अहमद खान साहब के कारनामे और वासिफ खान साहब की सरपरस्ती और जो है हमारे लीडर्स के जो है कारनामे काबिल मुबारकबाद हैं। और इस वक्त मैं आपके सामने एक ऑनरेबल प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे जनाब निसार अहमद साहब, यू विल एक्ट एज द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ तेलंगाना स्टेट टीचर यूनियन।